Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में आता है, अकाउंटेंसी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैनल के ऊपर आपको, या तो ये चैनल के अंदर आपको इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसके भी लेक्चर्स मिल सकते हैं। तो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में यदि आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है तो डेफिनेटली आज का प्रॉब्लम और उसका एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन आपके काम ज़रूर आएगा। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए आगे चले जाते हैं। क्वेश्चन मेरे पीछे है, इसे मैं और आप दोनों पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, Sunil and Suresh, who are sharing profit and losses in the ratio of equally. Equally का मतलब है कि तीनों का जो रेशो है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, 1/3 इसको कहा जाता है। एक बैलेंस शीट दिया गया है, वो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है जल्दी से आपके लिए पढ़ लेता हूँ मैं। क्रेडिटर एंड बिल पेएबल, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू द लाइबिलिटी साइड. General reserve will be distributed to the partners. Capital will be written in the capital account. Bank will be written in the bank account. Debtor say RDD, computer, land and building machinery, not furniture. Not furniture. क्यों not furniture मैं बोलता हूँ। मशीनरी तक न्यू बैलेंस शीट। फर्नीचर 20,000 will in today's problem and only today's problem, आज के ही प्रश्न में, उत्तर में एक फर्नीचर अकाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली फर्नीचर या कोई भी एसेट रीवैल्यू होता है। क्या कहा पॉइंट नंबर 5 में? पॉइंट नंबर 5 में फर्नीचर वाज सोल्ड एट 21,800, रीवैल्यू नहीं किया, पुराना नया बेच दिया। जब एडमिशन रिटायरमेंट डेट, दोबारा एडमिशन रिटायरमेंट डेट के चैप्टर में कोई भी एसेट यदि बेचा जाता है तो पैसे आते हैं ना, तो उसके लिए मेरा सुझाव है एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाओ, छोटा सा 3 लाइन का एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाओ। तो फर्नीचर का अकाउंट बनाओ, उसके अंदर फर्नीचर का 20,000 लिख लेना। ओके, इसके बाद गुडविल। गुडविल ये पुराना गुडविल है, ये ओल्ड वैल्यू है गुडविल का, ये मैं बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिख दूंगा। 1 अप्रैल 2019 को सुरेश, तीसरा पार्टनर, रिटायर्ड। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से आपको बढ़ाना है, कंप्यूटर को 1,900 से आपको कम करना है। सारे डेटर्स अच्छे हैं, आरडीडी की कोई ज़रूरत नहीं है। मशीनरी का नया वैल्यू 9,400, गुडविल का नया वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, नया वैल्यू दिया है, हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, दिया है। फर्नीचर को बेच देना है, एंड अ पार्ट पेमेंट ऑफ
15,000 was made to सुरेश by RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब बैंक से भरा, एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ये हम हमेशा करते हैं। P&L एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और जो नया बैलेंस शीट है वो हमको प्रिपेयर करना है। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। जो सिंपल चीज़ें हैं मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि ये लेक्चर आपने जब भी देखा उसके बाद में आप इसको सॉल्व अपने आप से कर लीजिए। तो तब तक आपका मैं थोड़ा डेटा भी बचा देता हूँ। ऊपर क्रेडिटर और बिल पेएबल आया, उसके बाद में ठीक मेरे पीछे जनरल रिजर्व आया, और वो जनरल रिजर्व जो था कैमरा के अंदर ना मेरा थोड़ा पंखा आ गया। ओके, वो जनरल रिजर्व जो था जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके नीचे कैपिटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। अच्छा, इसके बाद ऊपर के बैंक खाते में 8,400, डेटर RDD, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर का एक स्पेशल अकाउंट मेरे ऊपर, और उसके डेबिट साइड पे मेरे ऊपर 20,000, क्योंकि इस प्रॉब्लम में फर्नीचर को बेच दिया है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, क्योंकि बाकी का तो पूरा अपना सवाल हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग को आपको 10% इंक्रीज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग इज 70,000, उसको जैसे ही आप इंक्रीज करोगे वो एसेट प्लस हो जाएगा, और क्रेडिट साइड पे सेकेंड इफेक्ट आएगा 7,000। सिंपल था, ज़्यादा लंबा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर को आपको 1900 कम कर देना है, कम कर दो ना, माइनस कर लो, तो एसेट कम हो गया, एसेट माइनस, वो डेबिट साइड पे आएगा 1900। डेटा सारे अच्छे हैं, RDD की कोई ज़रूरत नहीं है, RDD को निकाल दो। कितना है RDD? 900, अरे निकाल दो, 18,000 डेटाज आपके अच्छे हैं। तो RDD लाइबिलिटी है जो माइनस हो गया, RDD लाइबिलिटी है जो माइनस हो गया, वो भी क्रेडिट साइड पे आता है P&L एडजस्टमेंट के। तीसरा पॉइंट, मशीनरी का नया वैल्यू 9,400, लिख लो, 600 से ये भी कम हो गया, एसेट माइनस डेबिट साइड पे आता है, ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद गुडविल का नया वैल्यू 16,500। एक मिनट, पुराना गुडविल कितना था? 12,000। अरे तो गुडविल रेज्ड हो गया, आई रिपीट माई सेल्फ, गुडविल रेज्ड हो गया। कितना? 4,500। किसका गुडविल रेज हुआ? पार्टनर्स का, अनिल, सुनील, सुरेश। तो ये रेज्ड गुडविल 4,500 आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, रेज्ड गुडविल रेशो में कर लो, क्योंकि ये तीनों का गुडविल रेज्ड है इक्वली 1,500 ईच। आई रिपीट माई सेल्फ, द चेंज इन गुडविल इज एन इंक्रीज इन गुडविल इज अ रेज्ड गुडविल। ये अच्छा नाम, रेपुटेशन तीनों पार्टनर्स का है, हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके बाद फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 21,800। अच्छा एक मिनट, फर्नीचर बेचेंगे तो क्या होगा? अरे भाई कुछ भी बेचेंगे तो पैसा तो आएगा और फर्नीचर जाएगा, फर्नीचर को टाटा, बट पैसा आएगा। ओके, उसको वेलकम वेलकम। पैसा बैंक में आएगा क्योंकि अपने पास में बैंक का खाता है ना, तो बैंक में डेबिट साइड पे टू फर्नीचर 21,800, फर्नीचर के क्रेडिट साइड में बाय बैंक 21,800। पैसे आए और फर्नीचर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरीके से फर्नीचर के सेल को हमने हैंडल किया, बड़ा सिंपल था। ओके, फिर सुरेश रिटायर कर रहा है, सुरेश को आप 15,000 दे दो, दे देते हैं जी, कोई बड़ा बात नहीं। सुरेश बन गया डेबिट द रिसीवर, तो सुरेश के खाते में 15,000 टू बैंक, बैंक के खाते में बाय सुरेश 15,000, यहां तक हो गया। और सुरेश के बचे हुए पैसे को सुरेश के लोन में डाल दीजिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ना एंड ऑलमोस्ट सॉल्व करना हो चुका है। अभी होता है टोटलिंग का टाइम। पहले फर्नीचर को टोटल करो, सबसे पहले फर्नीचर को। डिफरेंस कितना आता है? डेबिट में 1,800। डोंट से, मत कहना सर ये बैलेंस है, मत कहना, क्योंकि मैं तो खुद बोल रहा हूं। क्यों बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक में तो आता है, क्योंकि पूरा फर्नीचर आपने बेच दिया। अगर पूरा फर्नीचर बेच दिया तो बैलेंस कहां से बचा? बैलेंस का मतलब बचा हुआ। तो फिर ये 1,800 रुपया क्या कर रहा है? आपने 20,000 का फर्नीचर बेचा, आपको वो समझना है।
21,800 के लिए तो फायदा हुआ ना, ये वो फायदे का है 1,800, और फायदा कहाँ पे जाता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे 2 ऊपर आएगा बाय, यहाँ पे 2। इसके लिए ये खाता पहला बंद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज बेचो, या तो नफा या तो नुकसान, और वो नफा नुकसान के अकाउंट में जाता है। बैंक अकाउंट को बंद करो, क्रेडिट में आपको और मुझको डिफरेंस आएगा 15,200, वो चला जाएगा ऊपर के बैलेंस शीट में। फिर वो P&L एडजस्टमेंट को बंद करो, डेबिट में आपको और मुझको दोनों को डिफरेंस आएगा 7,200, जो है प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में इक्वली 2,400 2,400 2,400। वहां पे था 2, ठीक मेरे पीछे आएगा बाय। सबसे पहले सुरेश का खाता टैली होगा, क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है। उसके डेबिट साइड पे 25,400, ये सुरेश का बचा हुआ पैसा है जो उसके लोन में जाएगा। सुरेश का बचा हुआ पैसा उसके लोन में, ये है 2, उधर ऊपर है नॉट बाय लाइबिलिटी, ये है डेबिट, ऊपर है क्रेडिट। अनिल सुनील भी टोटल हो जाएंगे, ठीक मेरे पीठ पीछे उनका भी जवाब आ जाएगा। अनिल का डिफरेंस 52,000 का कैपिटल का बैलेंस, सुनील का डिफरेंस 43,400 का कैपिटल का बैलेंस, और ये कैपिटल का बैलेंस चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पर। टोटल होकर आप बाहर लिख लीजिए, और दुआ की और दिमाग की दोनों ज़रूरत और दोनों आपने ये यूज़ किया, तो आपका बैलेंस शीट दोनों साइड पे सेम आना चाहिए, 1,51,700। अगर इतना आप समझ गए, अब इसके बाद में आप यही प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करो। कोई चीज़ पूछनी है आप कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछ सकते हो। अगर आप हमारे पुराने मित्र हो तो हमारे इन लेक्चर वीडियोस को दूसरों के साथ में शेयर करें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।